Hi guys, this is Vineet Pandey and we are going to deal with a very special lecture on culture studies, advanced level culture studies and post-colonial literature connected to culture studies. So once again, I welcome you on my channel. This is a direct lecture. All the students who are watching it for the first time, this is not a basic lecture on culture studies. We are talking about something really next level, advanced. So the first thing that you can see on your screen is culture studies and robotics. Yes, electronic literature and cyborgs are the part of culture studies, but if you're preparing for those things directly, I must warn you, please do not get overtly involved in cyborg literature and electronic literature. अभी बहुत ही recent literatures हैं, ज़्यादा develop नहीं हैं, हो सकता है पेपर में questions ना मिले, but yes, culture studies is a new topic. न्यू टॉपिक मतलब इतना भी नया नहीं है. 1964 CCS, Center for Contemporary Culture Studies, it started in Birmingham. We know about this thing, we have talked about this thing in my earlier classes. Stuart Hall, Dick Habers, then Richard Hoggard, for the writer of Use of Literacy. These people are the main founder behind culture studies school and development things. JNU's department is also added in one of the top 100 culture studies department. Now the question is, are we going to talk about the humanoids, cyborgs? We are going to talk about man-made robots. Yes. In culture studies, first thing that you have to understand, the syllabus or the target area of culture study, the stream of culture study, it is not limited. In fact, it is being explored. तो अभी ये explore हो रहा है. Matthew Arnold, in his famous work Culture and Anarchy, came with the definition of culture. He said, culture is something best that has been thought and said. तो जो भी आपने बेहतरीन सोचा है, बेहतरीन, वो culture है. Matthew Arnold talked about high culture, he talked about low culture, he talked about the various parts of culture, Hebraism, Hellenism, Philistines, then we have studied populace concept. ये सारी चीजें हमने पढ़ी. But along with these things, what else are added in culture studies? So the students who are preparing for net exam, please do not go in the depth of electronic literature, cyborg studies. और आपको जितना करना है cyborg studies या electronic literature that I will teach you in private class, हम उसको सिर्फ टच करेंगे, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है. But all the new students who are watching me here, see what exactly is culture. Have you ever thought about this thing? What is the need of culture studies? क्या जरूरत है कल्चर स्टडी पढ़ने की? पहले से हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, सोसाइटी पढ़ रहे हैं, मोहब्बत, जंग, जुनून सब तो पढ़ रहे हैं लिटरेचर में. ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी, लव ट्रेजेडी, रोमांटिक कॉमेडी, रोमांटिक ट्रेजेडी. क्यों कल्चर पढ़ना है? द कॉन्सेप्ट इज कल्चर इटसेल्फ इज फॉर्म्ड. कल्चर अपने आप इवॉल्व होता है, बनता है. यू मस्ट बी नोइंग द टर्म बाय एंटोनिन ग्राम्सी, द कल्चरल हेजेमनी. ग्रेजुअली वन कल्चर ओवरपावर्स अनदर कल्चर. आप थियोडोर अडोर्नो की टर्म जानते होंगे, कल्चरल इंडस्ट्री. इसी की तरह कल्चरल मेटलिज्म, रेमंड विलियम्स, ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं जो कल्चर से रिलेट करती हैं, कल्चर से रिलेटेड स्टडीज को फोकस करती हैं. What are the elements added in culture things? First of all, it is anthropological. Man in the center, his behavior, his communication, his language, his habits, everything is the part of the culture. Then we study the factors that they develop character, they develop the character of the human being, how human beings are evolved. आसान भाषा में मैं आपसे पूछता हूं, बहुत पहले लोग सुबह कब उठते थे? What was the method of getting up early morning hundreds of years back when there was no even alarm clock? The hen, the sound of the cock, मुर्गे की आवाज से, birds की आवाज से. People would get up that okay, we have got the early morning sound of that hen. It's 4 a.m. Now they switched to alarm clocks, and now the current situation is that we have smart watches. Our smart watches are tracking our sleep cycle. They make us walk. They tell us that congratulations, you have walked 10,000 steps. They tell us to drink the water. And I personally tell you this thing, that this is the reason I don't wear my smart watch. I don't want this smart watch to tell me again and again, drink water, get up. I felt it was colonizing me. I somehow started feeling that I'm following it. And then I felt that why I'm following a machine. Alexa in your house, Alexa, play the song. Alexa is technically recording your sound, recording your conversations. Amazon, Flipkart, and all big things that make you purchase, they know the power of showing you things in front of your eyes. Repeated existence in front of your eyes, it makes you think.
Yesterday I was driving, I went to Noida. So from Delhi to Noida there is a highway. That highway, at the center of the highway, where the road divider was there, at the divider there were 200 plus posters of a one particular tobacco company. So if you're driving and you are repeatedly seeing that tobacco, if you eat it, you will have that urge to get it, to have it. So technically, how they are controlling your brain, how they are using you as a mechanized consumer, and how they're going to develop the overall culture. This is the part of culture studies. अब यहाँ पे कुछ चीजें देखते हैं, और एक चीज और है दोस्तों, ये नेट जेआरएफ के लेवल का कोई लेक्चर नहीं है. इट इज इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? Theoretically, when I teach it on board, so I teach with writers, their theories. हम proper theories करते हैं कि Sapir-Whorf analysis क्या है, या हम जो Gestalt theory है वो क्या है, इन सारी theories में depth में जाते हैं. What is localization? तो आपको एक चीज देखनी है यहाँ पे. See, first of all, जैसे ये robotics and all है, तो good robot, bad robot, आपको इस बुक का नाम याद करना है, सर्च इट. आप सर्च कर लेना, गुड रोबोट, बैड रोबोट. दूसरी बुक जो है वो यहाँ पे बहुत फेमस है, मैन मेड वुमन, सेक्स डॉल्स. एक चीज देखिएगा कि आपको पता है कि एक मार्केट ऐसा है जहां पे पोर्नोग्राफिक थिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं, वहां पे एक आर्टिफिशियल फीमेल फॉर सेक्स पर्पसेस क्रिएट किया जा रहा है. मैन मेड वुमन, दीज आर एडवांस लेवल स्टडीज. जो पब्लिकेशंस है वो स्प्रिंगर पब्लिकेशन है. यहाँ पे भी जो मैंने आपको इससे पहले बुक बताई थी, द गुड रोबोट एंड बैड रोबोट, स्प्रिंगर पब्लिकेशन है. वर्ल्ड के सबसे माने हुए पब्लिकेशंस में से एक होता है. हर बुक 10,000 20,000 के ऊपर होती है. रिमेंबर जापानीज प्रोफेसर, जापान के प्रोफेसर हमारी क्लास में आए थे ऑफलाइन बैच में, ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था. दैट इज ऑल्सो स्प्रिंगर पब्लिकेशन, मार्केट प्राइस 9,000. सो ये टॉप लेवल पब्लिकेशंस है विच आर द लेटेस्ट. ये दीज थिंग्स आर लेटेस्ट डेवलपमेंट इन कल्चर स्टडीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, good robot, bad robot, man made woman. In my private class I will teach these books, but आपको अपनी तरफ से जरूर देखना है. साथ में आपको डोना हैरावे साइबॉर्ग मैनिफेस्टो जरूर देखना है. 3 बुक्स देखनी है. अब इसके बाद बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस थे कि सर जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज है, मेरी प्राइवेट क्लास में ऑनलाइन बच्चों के क्वेश्चन है ये. द क्वेश्चंस आर लाइक दिस, सर कैन वी कनेक्ट पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज विद कल्चर स्टडीज? यस, post-colonial studies can be connected to culture studies, but not all. Because if you are focusing on a particular stream only, then it becomes purely post-colonial. But when you talk about the post-colonial references and its overall impact on culture, it is very much connected to culture studies. तो जो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, don't forget to subscribe the channel. आपके लिए मैं कुछ चीजें मार्क कर देता हूँ so that you can study on your own. Go for the concept of new literature. इसको जरूर चेक कर लो. फ्रेंच फेनोज आइडिया ऑफ फेनिज्म, इसको चेक करो. ग्लोकलाइजेशन दैट हैज बीन आस्क्ड इन एग्जाम, इसको चेक करो. ओरिएंटलिज्म, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पेडगिन क्रियोल, ये मैंने आपको वैसे भी पढ़ाया हुआ है. इन सारी चीजों को तो मेनली आपको चेक करना ही करना है. चेक दीज थिंग्स. आई बिलीव यू हैव सीन दीज थिंग्स, आपने देख लिया होगा. इसके बाद कुछ टर्म्स आपको और दे देता हूं जो आपको चेक करनी है. पेडगिन क्रियोल्स वी हैव मार्क्ड. हेजेमोनी, हाइब्रिडिटी, इंपीरियलिज्म एंड इंटरपैलेशन, ये क्लास में भी पढ़ाया मैंने, फ्री लेक्चर भी पढ़ाया था आपको. व्हाट इज इंटरपैलेशन, व्हाट इज इंटरपोलेशन, यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा. अदरिंग कॉन्सेप्ट देखना है, पेडरिंग क्रियोल हमने कर लिया. हाँ, द स्पेस एंड प्लेस कॉन्सेप्ट देखना है आपको. हाँ, दिस हाइफन पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड दिस पोस्ट कॉलोनियलिज्म. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस हाइफन पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म. ये मैंने बकायदा अपनी क्लासेस में कराया है, बोर्ड पे कराया है, बकायदा बताया है कि विद हाइफन व्हाट इज द मीनिंग, विदाउट हाइफन व्हाट इज द मीनिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा आप प्रिमिटिविज्म एंड रेस कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होगा दैट सर वी आर नॉट रजिस्टर्ड इन योर क्लासेस, तो हम कैसे पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन, देयर आर फ्रेश क्लासेस. लास्ट बैच ऑफलाइन टॉपर सुकीर्ति, वो हमारी क्लासेस से है. इंडिया टॉपर है वो. इस तरह की क्लास आपको मिल जाएंगी. साथ में देयर आर सम वीडियो लेक्चर्स जो आप देख सकते हैं. मेरे कुछ वीडियो लेक्चर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं. ये हमारा ऑफलाइन बैच होता था, तो इसको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर देख सकते हैं. आई प्ले दिस फॉर यू. We people are the savages. This is offline crowd, India's biggest offline crowd. अब जो बाहर से आए, Most of these people are selected, qualified. अलग-अलग टीचर्स बन चुके हैं. इसमें बहुत सारे आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाइड बच्चे मिल जाएंगे. we will teach them. We will upgrade. So watch this video. इसमें आपको बहुत सारी पोस्ट कॉलोनियल टर्मिनोलॉजीज क्लियर मिलेंगी
जिन बच्चों को चाहिए कि मुझे डिटेल में मिले, मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकूं, और जिसको ऑफलाइन पढ़ना है, इफ यू वांट टू स्टडी ऑफलाइन लाइक दिस, अगर आप इस तरह से ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द क्लास. दिस इज द प्री कोविड बैच. उसके बाद एक और वीडियो जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो ये वाला है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा. इस वाले वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें टर्मिनोलॉजीज के साथ साथ समझाया मैंने. Avoids her Indian name. She takes a British name instead of calling herself just एज ए टीचर मैं इसमें विजिबल नहीं हूं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट थ्योरी इज टोटली इंपॉर्टेंट. थ्योरी इज टोटली विजिबल. name like one of us doesn't make you one of us. हमारे जैसे नाम रख लो कोई बात नहीं, पर तुम हमारे जैसे not. ध्यान से देखिएगा. Essentialism का मतलब ये है कि अगर आपको even if you are in the North Pole and you find somebody with a tag name Sharma, Mishra, Chopra, you will say, अरे इंडिया से है क्या? Essentialism concept that I explained, that even if you meet two people with surnames taken from Indian identity, Nayars, Sharmas, Vermas, Mishras, या अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं और आपको दिखाई दे रहा है चैटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, राइट, these names you'll understand that they are Indians or Asians. So this is what we call essentialism. जब आप पढ़ोगे इस तरह की थ्योरी तो आपको बकायदा ही पूरा डिटेल में मिलेगा पढ़ने के लिए. You can question these things and go in the depth of these things. ये वही बैच है जिसमें फरहीन ने टॉप किया था, JRF टॉप किया था. You to the basic native land, ethnicity, the ethnic culture, the fusion of वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल क्लास जिसमें मेरे फादर ने अटेंड किया था. मेरे फादर बैठेंगे यहाँ पे. taste. हमारे जो religious behaviors हैं, experiments हैं, norms हैं, taste हैं, that's called ethnicity. और आपका एक YouTube टीचर भी हमारे बैच का ही स्टूडेंट है, नकुल. इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में नहीं था बच्चे का, लेकिन मेहनत बहुत की इस बच्चे ने. ये हमारे ऑफलाइन बैच से आज इतना नॉलेज लेके बैठा है कि आपको गाइड कर रहा है. तो देखिए, जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू माय फादर, इस तरह के बच्चे यहाँ से. फरहीन इसी बैच से थी, शिवांगी इसी बैच से थी, हीरल इसी बैच से थी, तमन्ना इसी बैच से थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारी फैकल्टी है अंतरा भाटिया इसी बैच से थी. तो जस्ट लाइक दैट यू कैन वॉच दीज थिंग्स. आप इस तरह की चीजें जब आप देखोगे ना तो आप लगातार ना केवल इनको प्रिपेयर कर सकते हो, बल्कि आप अपनी प्रिपरेशन पे बहुत अच्छे से फोकस करके खुद भी नेट और JRF क्वालिफाई कर सकते हो. आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो को सर्च करो, फाइंड आउट दिस वीडियो, स्टार्ट स्टडिंग. इसको आप इस नाम से फाइंड आउट कर सकते हो, फाइंड आउट विद दिस नेम. दिस इज माय अनदर चैनल, यहाँ पे आपको मिल जाएगा. उसके बाद आप वापस आके ये टर्मिनोलॉजीज को पढ़ना या ये जो कॉन्सेप्ट्स है यहाँ पे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो. जो की टर्म्स इन पोस्ट कॉलोनियल्स हैं, इसमें कॉलोनियलिज्म ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कल्चर स्टडीज के रेफरेंस में. तो कॉलोनियल कल्चर अपने आप में एक पर्टिकुलर स्टाइल हो जाता है. कॉलोनियल कल्चर आपको एक चीज क्लियर कर देगा, दैट दी बांग्लादेशीज, श्रीलंकन्स, इंडियंस, पाकिस्तानी, अफगानिस्तान, हम सब एक माइंडसेट के हैं बिकॉज वी हैव बीन कॉलोनाइज्ड. नेपाल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉलोनियल कल्चर बिकॉज नेपाल हैज नेवर बीन कॉलोनाइज्ड. नेपाल को कभी भी कॉलोनाइज नहीं किया गया. अच्छा, इसके साथ आप एक चीज और देखिएगा, कॉलोनियलिज्म के साथ पोस्ट कॉलोनियलिज्म आपको देखना है. फिर जो कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बिवैलेंस है, रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज्ड, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं आपके लिए ताकि आपको टर्म्स क्लियरली विजिबल हो जाए. एम्बिवैलेंस की टर्म आपको जरूर देखनी है. फिर ये अदरनेस का पार्ट है, इसको आप छोड़ सकते हो. कॉलोनियल एजुकेशन आप छोड़ सकते हो, बट डायस्पोरा आपको जरूर देखना है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं. एसेंशियलिज्म इग्नोर कर सकते हो, एथनिसिटी इग्नोर कर सकते हो, इसको कर सकते हो. हेजेमनी एंड हाइब्रिडिटी, इनको इग्नोर नहीं करना है. नाउ रिपीटिंग वंस अगेन, क्या ये सारी टर्म्स मैंने कहीं करवा रखी हैं? जी हाँ. अभी जो पिछला यूट्यूब वीडियो देखा जहां पे मैंने आपको अपने स्टूडेंट्स के बारे में भी बताया, इन बच्चों की तरह आप भी उस वीडियो का पार्ट बनो, ऑफलाइन बैच का पार्ट बनो, एग्जाम क्वालिफाई होगा. ऑल ऑफ दीज टर्म्स, ये सारी टर्म्स जो मैंने अभी एक वीडियो दिखाया था, अभी जस्ट पीछे वाला वीडियो, उसमें एज इट इज पूरा सॉल्व है. आपको एज इट इज मिलेगा. वॉच दैट वीडियो, प्रिपेयर दीज थिंग्स, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है तो आप अपना प्रिपेयर कर लो. एंड जिस बच्चे को ऐसे पढ़ना है, नॉलेज के साथ डिटेल में पढ़ना है, जो बच्चा साइबॉर्ग स्टडीज, रोबोटिक स्टडीज को पढ़ना चाहता है, कल्चर स्टडीज में अब AI को भी स्टडी किया जा रहा है, तो जिस बच्चे को इस एडवांस लेवल पे पढ़ना है, यू बी द पार्ट ऑफ ऑफलाइन बैच या गूगल ड्राइव, क्योंकि बहुत हाई लेवल इलेबोरेटेड स्टडी वो सिर्फ ऑफलाइन में हो पाएगी.
ऑफलाइन में ऐसे टॉपिक भी पढ़ाए जाते हैं जो डायरेक्ट नेट का सिलेबस नहीं है, लेकिन आपके लिए दुनिया के सबसे लेटेस्ट लिटरेचर का पार्ट बन जाता है। हम वो भी पढ़ाते हैं। हम जर्मन होलोकॉस्ट लिटरेचर भी डिटेल में पढ़ाते हैं। So that will be best for you. Watch this video, share it with everyone, and yes, just like my other students who are qualified and are teaching you now, you can also be a teacher. नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, जीरो बैकग्राउंड है, एमए डिस्टेंस से हुई है, नॉलेज नहीं है, कम टू ऑफलाइन बैच। जैसे हमने पहले रिजल्ट दिए हैं वैसे ही आपका रिजल्ट फिर मिलेगा। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।